Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the exercise of chapter number 12. So let's move. Dear students, chapter number 12 exercise. So first of all we are going to discuss the multiple choice questions, means MCQs. So first MCQ is the process that carry nerve impulse away from the cell body are. ऐसे प्रोसेसेस न्यूरॉन के जो कि नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से अवे लेकर जाते हैं. सो डेफिनेटली आपको याद आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स. सो अल्फा ऑप्शन इज एक्सॉन. Yes, that is the correct option, dear students. Axon are the processes which carry nerve impulse away from the cell body. Dendrites, dear students, dendrites towards the cell body लेकर जाते हैं, इसलिए dendrites is not option. And what is synapse? Synapse जो होता है, dear students, that is a small distance or microscopic gap between the two conjunctive neurons. So that is also not the correct option. And option delta is myelin sheath. So myelin sheath, dear students, it is not also the correct option because myelin sheath is just an insulation. So the correct option for this MCQ is alpha, that is axon, the process that carry nerve impulses away from the cell body. Next MCQ is the portion of the nervous system that is involuntary in action. तो हमारे nervous system का वो कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि that is involuntary in action, जो कि खुद ब खुद काम करता है, जो जिसकी हमारे विल के ऊपर कोई जोर नहीं चलता. सो ऑप्शन अल्फा इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम. नो डियर स्टूडेंट्स, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है that is under our conscious control. Option beta is motor nervous system. So motor nervous system or motor neurons, they carry nerve impulses from CNS to the effector organs. So that is also not the correct option. Option Charlie is autonomic nervous system. Yes, my dear students, that is the correct answer. ANS or autonomic nervous system, that is involuntary in action. It is further divided into two parts, that is sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. So ये involuntary है, ये automatically हमारी body के मुख्तलिफ तरह के actions को control कर रहे होते हैं. And option D is sensory nervous system. तो sensory nervous system हमने पढ़ा ही नहीं है, sensory neurons पढ़े हैं. Clear? Now the next MCQ is which neurons are present inside the central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से न्यूरॉन्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स. पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है दैट इज बेसिकली बेस्ड अपॉन टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो डियर स्टूडेंट्स उनमें कौन से न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो सेंसरी न्यूरॉन्स ओनली. नो डियर स्टूडेंट्स, मोटर न्यूरॉन्स ओनली. नो डियर स्टूडेंट्स, नॉट ओनली सेंसरी, नॉट ओनली मोटर, एंड sensory and motor neurons both. So dear students, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं the neurons which are present inside the central nervous system, inside, जो जिनके ऊपर मुश्तमिल है. So the correct option is delta, that is interneurons, जिनको हम associative neurons या association neurons भी कहते हैं. Let's move to another MCQ. It says the part of the brain that is responsible for muscle movement, interpretations of senses and memory is. हमारे ब्रेन का वो कौन सा ऐसा हिस्सा है जो हमारे मसल्स की मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है, हमारे सेंसेस को, लाइक सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ साइट, इनको कंट्रोल कर रहा होता है, उनको इंटरप्रेट कर रहा होता है, और साथ में उसका मेमोरी से यानी हमारी याददाश्त से भी ताल्लुक है. सो डियर स्टूडेंट्स, पॉन्स, अल्फा ऑप्शन इज पॉन्स. नो डियर स्टूडेंट्स, और पॉन्स इज एन असिस्टेंट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा. एंड ऑप्शन बीटा इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम होता है रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, इनको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना. ऑप्शन चार्ली इज सेरिब्रम. यस डियर स्टूडेंट्स, this is the part or the largest part of the forebrain and the brain which is involved in the muscle movement as well as interpretations and senses and memory. And delta option cerebellum. So it is just related to the movement of the skeletal muscles only, especially, and it is for the body balance. So the correct option for this MCQ is Charlie, that is cerebrum. Now the next MCQ is apart from hearing, which another major body function is performed by the ear. हमारे जो कान हैं वो कुव्वत समात के साथ साथ इसके अलावा और कौन सा मेजर
फंक्शन है जो परफॉर्म करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हार्मोन सेक्रेशन अल्फा ऑप्शन है। नो माय डियर स्टूडेंट्स, कानों से कोई हार्मोन सेक्रेट नहीं होता। ऑप्शन बीटा इज बॉडी बैलेंस। यस डियर स्टूडेंट, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे जो ईयर्स हैं आपने पढ़ा था, इनर ईयर जो होता है उसके अंदर वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया, ये हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो होपफुली आपको याद आ गया होगा, इनर ईयर के अंदर हमने इसको डिटेल से पढ़ा था। सो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, दैट इज बॉडी बैलेंस। And reduction in nerve impulse, that is not correct, and all of these, that is not correct also. So correct option is beta, that is body balance. Next MCQ is the myelin sheath is formed by dash which wraps around the axons of some neurons. तो dear students, myelin sheath कौन से cells हैं जो secrete करते हैं, आपको डिटेल से बताया था। Nodes of Ranvier, no dear student, nodes of Ranvier तो these are the gaps between the myelin sheath. बीटा ऑप्शन इज एक्सॉन्स। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सॉन्स तो वो प्रोसेस है जो कि नर्व इंपल्स को अवे लेकर जाता है सेल बॉडी से। चार्ली ऑप्शन इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स विच कैरी नर्व इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, सो दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट ऑप्शन। द ओनली ऑप्शन रिमेनिंग इज द डेल्टा ऑप्शन, दैट इज शॉन सेल्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, शॉन सेल्स जो है ये सेक्रीट करते हैं माइलिन शीथ को, जो एक लिपिड्स की लेयर है जो कि एक इंसुलेशन का काम करेगी ताकि नर्व इंपल्स है वो बेहतर स्पीड के साथ ट्रेवल कर सके अलोंग द नर्वस सिस्टम। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर एमसीक्यू, दिस इज व्हिच वन और दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। इन नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है। सो ऑप्शन अल्फा पॉन्स, यस दैट इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। हमने ढूंढना है कौन सा हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है। ऑप्शन बीटा मेडुला ऑब्लोंगेटा, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। एंड ऑप्शन चार्ली इज सेरेब्रम। यस डियर स्टूडेंट्स, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन बिकॉज हाइंड ब्रेन के तीसरा पार्ट वो नीचे दिया गया है, दैट इज इन द डेल्टा ऑप्शन, इट इज सेरिबेलम। तो सेरिब्रम सी और चार्ली ऑप्शन इज द आंसर फॉर दिस एमसीक्यू. It is not the part of hindbrain, rather it is the part of forebrain. Now my dear students, let's move to another MCQ. If you look at an intact human brain, अगर हम एक सही सलामत human brain को देखें, what you see the most is a large, highly convoluted outer surface. तो उसमें सबसे बड़ा जो आपको दिखाई देगा हिस्सा, उसको हम क्या कहते हैं? So starting from delta option, medulla oblongata, no dear students. Charlie is pons, no dear student, ये भी छोटा सा हिस्सा होता है भरा हुआ। ऑप्शन बीटा से सेरिबेलम, नो डियर स्टूडेंट, ये भी छोटा है। ऑप्शन अल्फा इज सेरिब्रम। यस डियर स्टूडेंट, जब भी हम ब्रेन को सोचते हैं, जब उसका इमेज हमारे दिमाग में बनता है, तो वो सबसे बड़ा हिस्सा जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, जिसके अंदर डिप्रेशंस भी हैं और एलिवेशंस भी हैं, दैट इज सेरिब्रम, जिसके 4 लोब्स हैं, frontal, parietal, occipital, temporal. Now dear students, let's move to another MCQ. Insulin and glucagon are produced in the insulin और glucagon ये कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स? आपको याद आया, ये दोनों ही ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं मिलकर एंटागोनिस्टिकली, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। सो अल्फा ऑप्शन इज हाइपोथैलेमस, नो डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन बीटा इज एंटीरियर पिट्यूटरी, नो डियर स्टूडेंट्स, ये वहाँ से भी सेक्रेट नहीं होते। ऑप्शन चार्ली इज लिवर, नो डियर स्टूडेंट्स, लिवर से भी ये सेक्रेट नहीं होते। एंड द लास्ट ऑप्शन इज डेल्टा, डेल्टा ऑप्शन इज पैनक्रियाज। यस डियर स्टूडेंट्स, पैनक्रियाज इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू. So insulin and glucagon are secreted from pancreas. Now let's move to another MCQ. It says all of these are hormones except, इन नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन से हार्मोन्स हैं और उनमें एक ऐसा है जो कि हार्मोन नहीं है। तो हमने इसमें से पिक करना है जो कि हार्मोन नहीं है। सो इन अल्फा ऑप्शन इज इंसुलिन। यस डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, दैट इज अ हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियास। ऑप्शन बीटा इज glucagon. Yes my dear student, that is also a hormone. It increases the level of glucose. It is released from the alpha cells of the pancreas. And option Charlie is thyroxine. This is a hormone released from the thyroid gland. So option delta is pepsinogen. तो dear students, आपको याद आ गया होगा, ग्रेड 9 में आपने पढ़ा था in the chapter number 8
and that pepsinogen, it is the inactive form of pepsin, that is a digestive protein digesting enzyme. So ये enzyme है, hormone नहीं है. So pepsinogen is not a hormone. So our answer for this MCQ is delta, that is pepsinogen. Now let's move to some short questions. Identify the two types of nerve coordination in the living organisms. तो dear students, living organism में कितनी किस्म की coordination होती है हमने पढ़ा था स्टार्ट में. There are two kinds of coordinations in the living organisms. Number one is nervous coordination and the second one is chemical coordination. Now differentiate between the modes of nervous and chemical coordination. हमें केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन में डिफरेंशिएट करना है. सो पहले हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, while chemical coordination of the body is done by the endocrine system through the chemical messengers called hormones sent through the bloodstream. जो chemical coordination होती है उसमें endocrine glands की involvement होती है, जैसे हमने पढ़े थे pituitary, anterior pituitary, posterior pituitary, islets of the Langerhans, thyroid gland, etc., adrenal glands, adrenal cortex, adrenal medulla. तो ये केमिकल मैसेंजर सेंड करते हैं, ब्लड के अंदर डायरेक्टली पोर करते हैं, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज केमिकल कोऑर्डिनेशन. दे रीच देयर टारगेट सेल एंड परफॉर्म देयर फंक्शंस. व्हाइल द नर्वस कोऑर्डिनेशन, द नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व. जहाँ तक नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात है, हमारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है और उसमें नर्व इम्पल्सिस के ट्रांसमिट की जाती हैं थ्रू द न्यूरॉन्स, और वो अपने टारगेट जो सेल्स हैं वहाँ से मैसेज लेके भी जाती हैं टुवर्ड्स द हायर सेंटर, और वहाँ से लेकर भी जाती हैं टुवर्ड्स द टारगेट सेल्स. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था डिटेल के साथ, हमने 2 लेक्चर्स में ये पढ़े थे कि जो हमारे कोऑर्डिनेशन के मेन कंपोनेंट्स कितने होते हैं. देयर आर 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. नंबर 1 इज द स्टिमुलस. Now second is receptors, the third is coordinators, fourth one is the effectors, and the number 5 or 5th is the response. Now the next question is define reflex action and reflex arc. तो dear students, detail के साथ पढ़ाया क्या. The pathway followed by the nerve impulse for producing a reflex action is called a reflex arc. और इसका अल्लाह ताला ने की तरफ से बहुत बड़ी रहमत हुई. ये रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स जो पाथवे बनाया गया, अल्लाह ताला ने हमें ये ब्लेस किया इससे कि बहुत सारे ऐसे हमारे डेली बेसिस के ऊपर कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो अगर हम उस पर सोचने लग जाएं तो उसमें हमारी बॉडी को ज़्यादा नुकसान हो जाता है. तो नर्वस सिस्टम जैसे ही सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज लेकर आते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से वापस उसी वक्त मोटर न्यूरॉन्स के जरिए उसी इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचा दिया जाता है. जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है, हॉट ऑब्जेक्ट को फिंगर टच हुई, सेंसरी जो न्यूरॉन्स हैं उनको मैसेज लेकर स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचते हैं. स्पाइनल कॉर्ड उसको बजाय इसके कि सबसे पहले उसको ब्रेन में भेजता, डायरेक्टली वहीं से इंटर न्यूरॉन के जरिए उसको मोटर न्यूरॉन से पास करता हुआ वो इफेक्टर ऑर्गन तक ले जाएगा उसी फिंगर के, और उसको पीछे हटा लिया, विथड्रॉ कर लिया जाएगा. और उसके बाद फिर सेकंड मैसेज जाएगा टुवर्ड्स द ब्रेन. तब हम हाथ हटा चुके होंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये कोई गर्म चीज थी. सो दैट इज अ प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स. थैंक्स टू अल्लाह. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द प्यूपल रिफ्लेक्स इन डिम एंड ब्राइट लाइट. तो डियर स्टूडेंट्स, प्यूपल हमने पढ़ा था, दैट इज द होल दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द आइरिस मसल्स. तो वो किस तरह से डिम और ब्राइट लाइट में काम करता है, डियर स्टूडेंट्स आपको डिटेल से समझाया था. ये भी जब भी लाइट डिम होती है तो प्यूपल जो होता है वो डायलेट करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर एंटर हो सके. उस वक्त उसकी जो रेडियल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो सर्कुलर मसल्स हैं वो रिलैक्स करेंगे, जिससे प्यूपल का जो डायमीटर है या जो उसका जो अपर्चर है वो इंक्रीज हो जाएगा और मैक्सिमम लाइट आ सकेगी ड्यूरिंग डिम लाइट. और इन केस ऑफ ब्राइट लाइट जो इसके ऑपोजिट होगा, रेडियल मसल्स रिलैक्स करेंगे और उस वक्त को जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि सिर्फ उतनी लाइट एंटर हो सके आंखों में जिसकी ज़रूरत है. एक्सेस लाइट जो है वो हमारे रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती है. Now dear students, so how would you associate the role of vitamin A with vision and the effects of its deficiency on retina?
तो हमने पढ़ा था कि नॉर्मल विजन के लिए डियर स्टूडेंट्स के वहाँ पर अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो विटामिन ए हमें चाहिए होता है रोडोप्सिन को दोबारा से जोड़ने के लिए। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो रोडोप्सिन अगर टूट गया तो वो वापस जुड़ नहीं पाएगा, वापस जुड़ेगा नहीं तो रात को सही तरह से दिखेगा नहीं, क्योंकि रोडोप्सिन ये प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट है रॉड्स के अंदर, और रॉड्स जो होते हैं ये रात के वक्त यानी कि डिम लाइट में हमें दिखाई देने में मदद करते हैं, ये हमें विजन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से हो सकती है नाइट ब्लाइंडनेस। नाउ डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफाइन द टर्म्स हार्मोन एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स एंडोक्राइन सिस्टम इज अ मैसेंजर सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स which release hormones directly into a circulatory system or blood circulatory system regulating distant target organs। और इसी तरह से हार्मोन हमने पढ़ा था, इट इज अ स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर और मैसेंजर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड। These glands are ductless and release their secretions यानी कि hormones directly into the bloodstream. Blood carries the hormones to the target organs or tissues upon which they act। तो एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है डियर स्टूडेंट्स वो ग्लैंड्स पे मुश्तमिल होता है जो अपने सेक्रेशंस को ब्लड में पोर करते हैं, और जो सेक्रेशंस होती हैं उनको हम हार्मोन कहते हैं, और जो जिसको हम केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड से रिलीज होते हैं और अपने टारगेट ऑर्गन्स पे पहुंचते हैं, जो कि आम तौर पर थोड़ा सा दूर होते हैं अपने टारगेट जहाँ से रिलीज होते हैं, और उनका जो टारगेट ऑर्गन है वो थोड़ा सा अवे होता है। Now explain what can happen if there is no coordination in the activities of organisms। तो अगर एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ तरह की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो क्या हो सकता है? सो लॉस ऑफ फंक्शन डेफिनेटली, डिफिकल्टी इन सर्वाइवल। लेट्स सपोज कि मेरा हार्ट जो है उसकी मैं अभी भाग रहा हूँ, आई एम रनिंग, तो मुझे हार्ट रेट ज़्यादा, मुझे ज़्यादा ब्लड चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए। अगर मेरा हार्ट उस एनर्जी के साथ मीट नहीं करवा रहा मुझे तो दैट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर माई सर्वाइवल, तो मेरा जो बाकी मसल्स हैं वो सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। So there is a loss of control over the body. So thanks to Allah that he has given us such a nice coordination, control and coordination system. Now explain the location and the function of these parts of the brain. So first is the cerebrum, cerebellum, pituitary gland, thalamus, hypothalamus, medulla oblongata। तो डियर स्टूडेंट्स सेरिबेलम ये पार्ट है हमारे हाइंड ब्रेन का, एंड इट लाइज बिहाइंड द मिडल ऑब्लोंगेटा एंड इट कोऑर्डिनेट्स इन मसल मूवमेंट्स। नंबर 2 इज सेरिब्रम, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, डिस्कस कर चुके हैं, बार बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। इट कंट्रोल द स्केलेटल मसल्स, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस। इसके दो बड़े बड़े हेमिस्फीयर्स होते हैं जिनको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं, लेफ्ट एंड राइट। नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज अ पी शेप्ड ग्लैंड, endocrine gland attached to the hypothalamus of the brain. Many hormones, trophic hormones of the pituitary gland influence the secretions of other endocrine glands. So however, some hormones of this gland act directly on the various tissues of the body. तो pituitary gland के हमने मुख्तलिफ तरह के इसके anterior pituitary और posterior pituitary के different तरह के hormones देखे थे, उसको डिटेल से स्टडी भी किया था। Thalamus, it lies just below the cerebrum, and it serves as the relay center. It receives and modifies sensory impulses. It is also involved in the pain perception and consciousness. And medulla oblongata, it lies on the top of the spinal cord. Spinal cord के बिल्कुल ऊपर जो ब्रेन का हिस्सा पड़ा हुआ उसे medulla oblongata कहते हैं। थोड़ा सा elongated होता है इसलिए इसको oblongata कहा जाता है। And it controls breathing, heart rate, blood pressure. Also controls many reflexes such as vomiting, coughing, sneezing. These are protective reflexes which are controlled by medulla oblongata. Next question is define neuron and describe the structure of a general neuron. तो डिटेल के साथ हम पढ़ चुके डियर स्टूडेंट्स, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है। इसके पार्ट्स की बात करें तो उसमें सेल बॉडी है, वहाँ से कुछ प्रोसेस निकल रहे हैं, एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज describe the structure of human eye. तो 3 layers होती हैं dear students, outer, middle and inner. Outer layer is composed of sclera and cornea, while middle layer is composed of choroid, iris, lens and pupil, and the innermost layer, the sensory layer, is called as retina, जहाँ पर rods and cones मौजूद होते हैं।
and there are two types of fluids which are present in the eye: aqueous humor and the vitreous humor. Next question is, how would you describe the structure of external and the middle and the inner ear of man? तो external ear, dear students, ये 3 parts पे मुश्तमिल है, और सबसे बाहर पिना, then auditory canal and then is eardrum. उसके बाद फिर middle ear start होता है. The middle ear consists of 3 small bones, the malleus, incus and the smallest bone of the human body, the stapes. उसके it is attached to the oval window and the eustachian tube. And the third part is inner ear. It consists of 3 parts: the vestibule, the 3 semicircular canals and cochlea. Now, next question is, what are short sight and long sight problems and how these can be treated? तो डिटेल से डिस्कस किया था. मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये 2 डिसऑर्डर्स हैं जो कि शॉर्ट साइट और लॉन्ग साइट से रिलेवेंट हैं. मायोपिया को हम कहते हैं दैट इज शॉर्ट साइटेडनेस, वाइल हाइपरमेट्रोपिया दैट इज लॉन्ग साइटेडनेस. इसको करेक्ट कैसे किया जाता है? मायोपिया को कनकेव लेंस की मदद से और हाइपरमेट्रोपिया को कन्वेक्स लेंस की मदद से डिटेल से डिस्कस किया था हमने. इसको एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा प्लीज़. एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिवर इन द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस. हमारे बॉडी बैलेंस किस तरह से इसको मेंटेन करता है. हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट कि इसके सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल ये हेल्प करते हैं to maintain the balance of the body. Semicircular canals contain sensory nerves which can detect any movement of head. तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हमारी हेड की मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं. वेस्टिब्यूल जो होता है वो हमारे बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करता है. इन दोनों को कोलैबोरेट करने के बाद फिर हमारी बॉडी का पोस्चर जो है उसको मेंटेन किया जाता है. द न्यूरॉन्स कमिंग फ्रॉम दीज 2 रिसेप्टर्स रीच cerebellum through the auditory nerve. Next question is, relate the contribution of Ibn al-Haytham and Ibn Ali Ibn Isa with the knowledge about the structure of eye and treatment of various ophthalmic diseases. The reference Ibn al-Haytham, he was an Arab scientist, the father of optics. He wrote the book of optics. He discussed the improvement to the eye surgery, the principle of pinhole camera. And Ali Ibn Isa, he was also an Arab scientist. 3 books on ophthalmology. He described 130 diseases and 143 drugs to treat these eye diseases. Outline the major glands of the endocrine system with the name of their hormones and their functions. तो डियर स्टूडेंट्स हम डिटेल से पढ़ चुके हैं एक एक ऑर्गन को, एक एक ग्लैंड को और उसके हार्मोन्स को. पिट्यूटरी ग्लैंड हमने पढ़ा था, इसके 2 पार्ट्स पढ़े थे, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी से हमने पढ़ा था सोमेटोट्रोफिक हार्मोन and the thyroid stimulating hormone, और posterior pituitary से भी 2 हार्मोन पढ़े थे, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन. इसी तरह से थायराइड ग्लैंड में हमने पढ़ा था थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन. एंड देन एड्रिनल ग्लैंड से हमने पढ़े थे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. गोनेड्स से हमने टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. एंड पेनक्रियास से इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. Now describe the negative feedback with reference to the insulin and glucagon. So output of a process decreases or inhibits the process, that is what we call as the negative feedback. जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा, ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होगी, और जब डिक्रीज ग्लूकोज होगी तो there is the inhibition of insulin secretion. लो ग्लूकोज लेवल होगा तो तब ग्लूकोज जो है उसको बढ़ाने के लिए ग्लूकागॉन सेक्रीट होगा अल्फा सेल से, ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा. और जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर, तब ग्लूकागॉन इनहिबिट रहेगा, वो रिलीज नहीं होगा. एक्सप्लेन हाउ एड्रेनालिन मे बी इन्वॉल्व इन द एक्सरसाइज एंड इमरजेंसी कंडीशन. सो एड्रेनालिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, इट इज अ हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला. So it is emergency hormone. It increases the heart rate, it increases the blood pressure, it increases the blood flow to the limbs, and decreases the blood flow to the gut and to the skin. So that is how it helps during the emergency situations. Next is list the important symptoms and treatments of paralysis and epilepsy. So dear students, paralysis, there is a loss of function of a muscle groups, and damage to the, it is due to the damage to the CNS. And dear students, epilepsy जो है उसमें भी that is disorder of the nervous system which is marked by convulsions
and seizures. So it is treated by anti-epileptic drugs or medicines or anticonvulsants. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।